welcome to all of my students. Now we are discussing the exercise 1.3 application of calculus in commerce and economics. Here is now we are discussing the question number 10. If Cx cost function equal to x cube minus 24x squared plus 600x, find marginal cost and average cost. Calculate the range where AC falls and find the point where AC equal to MC. Verify that AC is minimum at this point and what is the minimum average cost. Okay. Here is the three different questions. First questions, find the marginal cost and average cost. So since therefore the marginal cost MC equal to, we know that the derivative of cost function with respect to x. Derivative of cost function with respect to x. So here is given that cost function equal to x cube minus 24x squared plus 600x, and cost function at the place of cost function we have to put x cube minus 24x squared plus 600x with respect to dx. And after that we derivative of x cube minus 24x squared plus 600x, we get 3x squared, because here is the formula क्या है ना, x to the power n उसका डेरिवेटिव करेगा तो d dash of x to the power n क्या होगा ना, n into x to the power n minus 1. दिस फॉर्मूला से x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा ना, 3 into x to the power 3 minus 1, that means 3 into x square. Clear? After that here is the minus 24 and x square का डेरिवेटिव 2x. Similarly 600 into x का डेरिवेटिव क्या होगा 1. x का डेरिवेटिव 1, क्यों ना, x का पावर 1 होता है, तो 1 into x to the power 1 minus 1, 1 minus 1 means 0, x to the power 0 इक्वल टू क्या वैल्यू है 1 है, दैट मीन 1 into 1 1 होता है. ठीक है, उसके बाद देखो ये मिल रहा है क्या ना, मार्जिनल कॉस्ट मिल गया. तो हमको पहला क्वेश्चन है, here is the first question, find marginal cost and average cost. This is the answer, that marginal cost will be this answer. Now we have to find out the average cost. Average cost means, what is average cost? Average cost means cost, the total cost per unit. Unit means the production unit. ठीक है, तो हमारा क्या करना, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल आउटपुट. आउटपुट मीन्स टोटल प्रोडक्शन क्या है, एक्स प्रोडक्शन है हमारा. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स एक्स. ये लिखना है सिंस नंबर ऑफ आउटपुट इक्वल टू एक्स. ये लिखना है नंबर ऑफ आउटपुट इक्वल टू एक्स. ताहले क्या होगा ना, सी बाई एक्स, दैट मीन्स दिस बाई एक्स, अलग अलग एक्स क्यूब बाई एक्स माइनस 24x स्क्वायर बाई एक्स प्लस 600x बाई एक्स, करने से एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 600. दैट इज द एवरेज कॉस्ट. सेकेंड क्वेश्चन क्या था, सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेंज वेयर AC फॉल्स. ठीक है, द रेंज वेयर AC फॉल्स. AC falls means AC decreases, because since we know that AC falls means AC decreases when क्या है, derivative of AC average cost with respect to x less than 0. ठीक है, so at the place of average cost we have to put x square minus 24x plus 600, because average cost is this. So now derivative of this 2x minus 24 into 1 plus 0, बस हो गया. After that we have to take common 2, x minus 12 less than 0, 2 will be divided under 0, and that's a 0 by 2 means 0, x minus 12 less than 0, and x equal to 12, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, जगह x less than 12. Therefore the production must be less than 12 and greater than 0. Production never be negative, production always positive. That's why x का वैल्यू होगा 12 का नीचे, the value of x will be less than 12 and greater than 0. And at this situation AC
false when the range of x will be क्या ना x लेस देन 12 एंड ग्रेटर देन 0. 0 एवं 12 के अंदर जब प्रोडक्शन हमारा होगा तब हमारा AC क्या करेगा, डिक्रीज करेगा और फॉल्स होगा. यही आंसर है सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन बोलते हैं फाइंड द पॉइंट वेयर AC इक्वल टू MC. पॉइंट वेयर AC इक्वल टू MC, पॉइंट निकलना है. माने कौन प्रोडक्शन में AC और MC माने एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट हमारा सेम हो जाए. ठीक है, तो देखिए क्या होगा, कैसे होता है देख लो. क्योंकि ना गिवन AC इक्वल टू MC, तो AC इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 600 और MC इक्वल टू पहले जो हमारा कैलकुलेशन था देखो देख लेगा क्या है. MC का हमारा कैलकुलेशन क्या था देखो, 3x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 600, वही लिख दिया. ठीक है, लिख दिया. उसके बाद बाय सॉल्विंग दैट 600 प्लस 6000 कैंसिल हो जाएगा. उसके बाद यहाँ पर x कॉमन ले लो, we have to take common x and after that x minus 24 and here also x common 3x minus 48 by calculation this such as such by solving rule we have to solve it. x equal to क्या है 12. clear? After that x equal to 12 and that's why we say that at x equal to 12 when output is 12 then our AC average cost must be equal to क्या है marginal cost, must be equal to marginal cost. यही हमारा आंसर है क्या है थर्ड क्वेश्चन का. बिकॉज थर्ड क्वेश्चन वाज फाइंड द पॉइंट वेयर AC इक्वल टू MC, दैट इज द पॉइंट 12, x इक्वल टू 12. एट दिस पॉइंट AC equal to MC. And next with that question there is another part question, verify that AC is minimum at this point. AC is minimum at this point. Verify. तो क्या होगा, again AC is minimum that is decreasing when the derivative of AC with respect to x less than 0. Clear? AC is minimum that is decreasing when मिनिमम मीन्स क्या है, इसे डिक्रीजिंग करेगा, सबसे कम होगा. ठीक है, रिड्यूसिंग, इसी विल बी रिड्यूस्ड व्हेन डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट मस्ट बी लेस देन 0. ये तो हमको मालूम है, बस वही लिख दिया, वही करो. ये एवरेज कॉस्ट को जरा पुट करो आप x लेस देन 12. पहले तो कैलकुलेशन वही किया, वही फेड किया. ठीक है, x लेस देन 12 फ्रॉम 1 से. तो AC इक्वल टू MC एट x इक्वल टू 12, ये तो सही है. और at this level of output AC is minimum, average cost is minimum. ठीक है, कौन लेवल, which level? At this level of output AC is minimum, जब हमारा प्रोडक्शन 0 का ऊपर और 12 का नीचे होगा. ठीक है, and its value is, तुमको अब पार्ट क्वेश्चन क्या बोला, पार्ट क्वेश्चन बोले व्हाट इज द मिनिमम एवरेज कॉस्ट, व्हाट इज द मिनिमम एवरेज कॉस्ट. तो हमारा पॉइंट क्या है, जहाँ पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगा वह रिड्यूस होगा कहाँ तक, 12 में, जब प्रोडक्शन 12 का नीचे होगा. तो देयरफॉर इट्स वैल्यू विल बी, एक्स का जगह में 12 कट कर दो, 12 स्क्वायर माइनस 24 इंटू 12 इंटू प्लस 600, दैट मीन्स 456. एंड दैट इज द आंसर. क्या ना हमारा क्वेश्चन क्या था ना, व्हाट इज द मिनिमम एवरेज कॉस्ट, एंड दैट इज द मिनिमम एवरेज कॉस्ट व्हेन आवर आउटपुट इज 12 एंड वी हैव टू यूज एट द प्लेस ऑफ x इन AC वी हैव टू यूज 12. ठीक है, 12 स्क्वायर माइनस 24 इंटू 12 इसमें दैट इज 456 हमारा एवरेज कॉस्ट है रुपीज़. क्या है रुपीज़, एवरेज कॉस्ट इतना रुपीज़. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. इफ C equal to x square plus bx plus k is the total cost function, find number 1 slope of average cost function, that means AC function, and slope of marginal cost function, that is MC function.
द स्लोप ऑफ द एवरेज कॉस्ट फंक्शन हम लोग को मालूम है क्या है ना, स्लोप ऑफ द एवरेज कॉस्ट फंक्शन इज क्या है ना, डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट with respect to x, and here also the number of items by output equal to x, ये हमको मालूम है। तो AC का हमको डेरिवेटिव करना है। AC means एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट at the place of average cost we have to put ax plus b plus k to the power x minus 1, ठीक है। तो हमारा एवरेज कॉस्ट क्या था, एवरेज कॉस्ट ये कहाँ से मिला, ये तो क्वेश्चन में नहीं था। तो हियर इज नो एवरेज कॉस्ट, देन वी हैव टू फाइंड आउट एवरेज कॉस्ट, बिकॉज हियर इज गिवन दैट ओनली कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के, एंड दिस इज द कॉस्ट फंक्शन व्हेन द आउटपुट इज एक्स। तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा, एवरेज कॉस्ट वी नो दैट एवरेज कॉस्ट इक्वल टू द टोटल कॉस्ट पर आइटम, ताहले सी बाई एक्स, सी बाई एक्स करने से देखो सी का जगह में लिखा टोटल कॉस्ट ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के बाई एक्स, आफ्टर सेपरेटिंग दिस ए स्क्वायर बाई एक्स प्लस बी एक्स बाई एक्स प्लस के बाई एक्स, ठीक है। करने के बाद ए एक्स प्लस बी प्लस के बाई एक्स, दैट मीन्स ए एक्स प्लस बी प्लस के ऊपर एक्स माइनस 1, एक्स डिवाइड में है ऊपर चला जाएगा, एक्स का पावर क्या है 1 था, जो ऊपर जाता है एक्सपोनेंट का रूल में 1 क्या हो जाता है -1 हो जाता है। तो यही एवरेज कॉस्ट इधर आ गया। उसके बाद डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करने के बाद देखो ए इसका डेरिवेटिव ए इंटू 1 होगा, ए इंटू क्या है 1, बी का कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0 होगा, और के इंटू एक्स टू द पावर -1 का डेरिवेटिव -1 इंटू एक्स टू द पावर -1, बिकॉज हियर इज द फॉर्मूला, वी नो दैट सिंस डेरिवेटिव ऑफ डी डैश ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर क्या है n माइनस 1, ये तो मालूम है हमको, इट इज नोन दैट, ठीक। अरे मिल गया माइनस n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, दैट मीन्स एक्स टू द पावर -2, दैट मीन्स ए इक्वल टू, इसको नीचे ले आओ फिर एक्स टू द पावर +2 होगा, बस यही हमारा आंसर है, स्लोप ऑफ द एवरेज कॉस्ट फंक्शन, स्लोप ऑफ द एवरेज कॉस्ट फंक्शन इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, सिमिलरली स्लोप ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन विल बी MC, कि डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सही करें। तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट तो हमको निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर सिर्फ तो सी दे दिया, टोटल कॉस्ट दे दिया, तो मार्जिनल कॉस्ट तो हमको मालूम है, सिंस मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू क्या है डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट द कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे डेरिवेट करने से हमारा मार्जिनल कॉस्ट 2x प्लस बी मिल गया। डेरिवेट करने के बाद मार्जिनल कॉस्ट का जगह मार्जिनल कॉस्ट पुट करो, पहले स्लोप ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट हमको मिल गया 2x का 2a इंटू इसका डेरिवेटिव 1 होता है और b का डेरिवेटिव 0 होता है, इसीलिए 2a आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है 12 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिमांड फंक्शन ऑफ কি বলছে monopolist is given by p equal to this, p means price বা डिमांड फंक्शन जो भी बोलता है, एज यू विश, p means price per unit और p means the demand function of the business, ठीक है। find the marginal revenue for any level of output x, ठीक है, any level of output x, क्या बोला मार्जिनल रेवेन्यू, अर्थात लास्ट प्रोडक्शन, लास्ट प्रोडक्शन को सेल्स करने के बाद, सेल करने के बाद जो हमारा रेवेन्यू मिलेगा वही हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है। एंड ऑल्सो फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 10, when x equal to 10, okay। now given price of demand function p equal to 1500 minus 2x plus 1, that is the price बोल दिया और डिमांड फंक्शन बोल दिया,
given price per unit or given function P equal to this. Find the marginal revenue for any level of output X. ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, पहले टोटल रेवेन्यू निकालना होगा। मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू इक्वल टू हमें क्या है, प्राइस इनटू आउटपुट प्रोडक्शन, जितना माल हम सेल किया, P इंटू एक्स। P का वैल्यू इज दिस, पुट करो एट द प्लेस ऑफ P यू हैव टू पुट 1500 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या है एक्स, 2500x माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स। क्लियर, এটা হচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য টোটাল रेवेन्यू। और मार्जिनल रेवेन्यू हमको क्या मालूम है, एम आर। मार्जिनल रेवेन्यू एम आर इक्वल टू क्या होगा ना, डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू दैट मीन्स आर with respect to x, that is the marginal. Marginal means derivative plus. If you want to find the marginal revenue, marginal average cost, marginal जो भी marginal बोलेगा, जिसका marginal बोलेगा, then you have to derivative की, you have to find derivation of that. यहाँ पर marginal revenue बोला, इसीलिए you have to find derivation of R. R means total revenue. तार का at the place of R 1500 minus 2 square minus x, that is this. डेरिवेटिव करने के बाद हमको मिला this 1500 minus 4s minus 3s. This is the marginal revenue. First question, when output is x. Also find the marginal revenue when x equal to 10. चलो हम लोग we have find the marginal revenue 1500 minus 4s minus 3x square, and then after that we have to find where x equal to 10. When our their value 10 होगा तो marginal revenue will be 1500 minus 4 into 10 minus 3 into 10 square. We have to put at the place of x, we have to put x at the place of x 10 from the marginal revenue. 1500 minus 4 into 10 minus 3 into 10 square. That means this. This is the answer. Clear? Thank you. Question number 13. A monopolist demand function is x equal to 50 minus p by p by 4, and then find the total revenue functions, average revenue function, and marginal revenue functions. It is given that the demand function is x equal to 50 minus p by a, whereas p equal to the price per demand, per production. So we have to find out the price per unit. That means from this equation we get p equal to 40 into 50 minus x, 200 minus 4x by solving rule. Okay. Now the total revenue functions equal to क्या होगा ना, total selling price, that means price per unit into number of units. That is the total revenue function. Clear? The price into number of output. That means this into this equal to this. This is the total revenue function. And similarly, average revenue functions. Average revenue functions means average the total revenue, total selling price by number of output. Okay? Number of selling item. That is 200x minus 4x square by x. ठीक है, नंबर ऑफ यहाँ पर क्या होगा ना, नंबर ऑफ सेलिंग आइटम्स, नंबर ऑफ सेलिंग आइटम्स। ठीक है, कितना सेल किया वही तुम्हारा निकलना है, तो नंबर ऑफ सेलिंग आइटम्स। क्लियर हो गया? तो टोटल रेवेन्यू क्या है, 200x माइनस 4x स्क्वायर बाई एक्स, तो 200x बाई एक्स माइनस 4x बाई एक्स। ठीक है, अलग अलग करके मिलेगा 200 माइनस 4x। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन।
marginal means derivative of revenue function, derivative of R, revenue function. Whereas at the place of R we have to put the revenue, total revenue. टोटल रेवेन्यू कितना है? टोटल रेवेन्यू यहाँ पर देखो आर क्या निकला, आर निकला क्या ना 200x माइनस 4x स्क्वायर. वही आर का जगह में पुट करो 200x माइनस 4x स्क्वायर, दैट मीन्स 200 इंटू दिस তাহলে मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन विल बी 200 माइनस 8x. एंड दिस इज द सॉल्व ऑफ क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 30. ठीक है. Next question number part 2. At what level of output is marginal revenue 0? Interpret it. कितना हमारा कितना सेलिंग करने का टाइम हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? 0 होगा. So marginal revenue will be 0, and therefore marginal revenue is 200 minus 8x. Previously we have calculated that marginal revenue equal to 200 minus 8x. That means 200 minus 8x equal to 0, 200 equal to 8x, x equal to 25. So the level of output must be 25 for being marginal revenue 0. Is the answer. And after that interpret it. इसको थोड़ा generalize करना है. तो क्या generalization क्या होगा ना? At x equal to 25, when output is 25 or selling item is 25, the marginal revenue will be 0. At 25th item, after selling 25th item, the marginal revenue will be 0. So further one production leads to negative returns. क्यों ना marginal revenue decrease होने से gradually decreasing and it reaches at 0 marginal revenue. And after that, if you sell one product, then where your marginal revenue selling price will be negative. That means no sale, loss, wastage. तो क्या होगा? 25 is the point of maximum total revenue. 25 ये क्या है? टोटल हमारा 25 क्या प्रोडक्शन करना चाहिए? मैक्सिमम मिनिमम रेवेन्यू करने के लिए, मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू करने के लिए हमको 25 तक प्रोडक्शन चालू करना है. ठीक है. 26 करने के बाद वो रेवेन्यू नहीं आएगा, रेवेन्यू में नहीं पूछेगा. हाँ तो सेल नहीं होगा, इसलिए बोल रहा है. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. एट व्हाट प्राइस इज मार्जिनल रेवेन्यू 0? एट व्हाट प्राइस द मार्जिनल रेवेन्यू इज 0? क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू एम आर इक्वल टू 0. दैट मीन्स 200 माइनस 8x इक्वल टू 0. मार्जिनल रेवेन्यू क्या बोला? क्वेश्चन क्या था ना? एट व्हाट प्राइस इज मार्जिनल रेवेन्यू 0? कितना प्राइस करने से, ठीक है, कितना प्राइस करने से माने पर यूनिट का कितना दाम करने से प्राइस करना है, सेलिंग प्राइस क्या करना है जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू 0 होगा. तो मार्जिनल रेवेन्यू विल बी 0. दैट मीन्स टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑलरेडी वी हैव we calculate the marginal revenue, calculated the marginal revenue, and answer was 200 minus 8x, and that's why 8x equal to 200, x equal to 25. ठीक है. तो प्राइस क्या होगा ना? प्राइस फंक्शन क्या था? प्राइस पहले ही तुम किया था कैलकुलेशन. प्राइस फंक्शन इक्वल टू 4 क्या? 200 माइनस 4x. यही हमारा प्राइस फंक्शन था. तो प्राइस क्या होगा ना? प्राइस 200 माइनस 4x, 200 माइनस क्या है 4x. इसका जगह में 25 पुट कर दो. फिर मार्जिनल रेवेन्यू 0 से हमारा 25 प्रोडक्ट जब होगा तब मार्जिनल रेवेन्यू 0 होगा. तो 25 पुट कर तो हमारा प्राइस आ जाएगा ₹100. अर्थात हमारा प्राइस ₹100 रखना है जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होगा 0. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. 40 बोलते द डिमांड for a certain product is represented by the equation P equal to this demand function. डिमांड और डिमांड फंक्शन जो भी हो, एक्चुअली ये क्या है? एक्चुअली ये है प्राइस पर यूनिट. प्राइस पर यूनिट हमको मिलता है. कितना प्राइस, कितना सेलिंग प्राइस होना चाहिए हमारा, कितना सेलिंग प्राइस हमारा होना चाहिए जब हम एक प्रोडक्ट करेगा सिंगल वन. तो वहाँ पर वन पुट करने से ये प्राइस मिलेगा. ठीक है.
जब हमारा प्रोडक्शन 100 होगा तो 100 में पुट करने से जो आंसर मिलेगा वही हमारा हर आइटम का प्राइस मिलेगा। समझे ना क्या हुआ? ऐसे ऐसे ही होता है। तो देखो क्या होगा। चलो पर प्राइस बोल दिया। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। पहला क्वेश्चन, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। मार्जिनल रेवेन्यू मीन्स डेरिवेटिव ऑफ क्या है? आर। आर मीन्स टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू हमको निकालना है। यहाँ पर प्राइस पर यूनिट बोल दिया P इक्वल टू दिस। देयरफॉर रेवेन्यू फंक्शन विल बी क्या होगा ना, प्राइस इंटू नंबर ऑफ यूनिट, दैट मीन्स P इंटू एक्स, दैट 300x माइनस 25x माइनस एक्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटपुट विल बी एक्स। बस क्लियर हो गया। तो मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा? मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन इक्वल टू क्या होगा ना, डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, द डी ऑफ दिस बाई डी एक्स, मैंने यही होगा। क्लियर हो गया ना? होगा, हो गया। तो एक्स का जगह में 1, एक्स स्क्वायर का जगह में क्या होगा, डेरिवेटिव को 2x मिल गया। बस ऐसे ही है। ये क्या, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शंस एम आर इक्वल टू 300 माइनस 550x माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर हो गया। और यहाँ पर एक ही तो रूल अप्लाई हुआ, क्या ना, सिंस डी डैश ऑफ एक्स टू द पावर n क्या होगा, डी डैश ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। यही जो क्या डेरिवेटिव का रूल अप्लाई किया, इसको डेरिवेटिव करता है। और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो इसका डेरिवेटिव 1 होता है, इसका होता है। क्लियर हो गया। तो मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन मिल गया, पहला आंसर हो गया। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट बोल रहा है ऑब्टेन द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एक्स इक्वल टू 12 यूनिट्स। मार्जिनल रेवेन्यू निकालना, जब एक्स जब 12 यूनिट होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, एंड इन इंटरप्रेट इट। ठीक है, और मार्जिनल रेवेन्यू वी हैव ऑलरेडी calculated that marginal revenue equal to 300 plus 50x minus 3x square, and that's why marginal revenue क्या है ना, एट बड़ा आइटम में। ठीक है, 300 इंटू 50 इंटू 12, फिर एक्स का जगह में 12 पुट करना है, एक्स का जगह में 12 स्क्वायर पुट करना है। तो एम आर इक्वल टू क्या आ गया, सिंस एम आर इक्वल टू दिस एंड देयर पर कैलकुलेशन करना। इट मीन्स क्या है, व्हेन आवर आउटपुट इज 12, देन our marginal revenue will be 468। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू मीन्स मार्जिनल सेलिंग प्राइस। लास्ट आइटम में सेलिंग प्राइस ऐसे ही मिलेगा, इसीलिए हमारा इट इंडिकेट्स दैट द 13 यूनिट आयल्स ₹468 रेवेन्यू, because 13 unit is closer to the 12 unit, and that's why they indicates the 13 unit aisles ₹468 revenue. Clear? Now the third question, calculate 400 R13 minus R12। एक कैलकुलेट करना है, इंटरप्रेट, इसका मीनिंग क्या है वो लिखना है। तो R13 R12 करो तो 13 आइटम रेवेन्यू क्या मिलेगा, सेलिंग करके हमको क्या मिलेगा। आर का फंक्शन क्या है, रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है ना, 300x प्लस 25x स्क्वायर माइनस एक्स की। यही था ना हमारा रेवेन्यू फंक्शन था आर। चलो R13 क्या होगा, R13 होगा दिस पुट करो, इसका जगह में 13 और R12 इसका जगह में सेम रेवेन्यू फंक्शन यहाँ पर दे दिया। बस पुट करो, पुट करने के बाद जो आंसर मिल रहा है 456 मिल रहा है। तो 456 का मीनिंग क्या होता है ना, यह ₹456 इंडिकेट एग्जैक्ट अमाउंट एडेड बाई 13 यूनिट। चले 13 यूनिट सेल करने के बाद हमारा एग्जैक्ट अमाउंट मिलेगा क्या ना, ₹456। 400 यही हमारा एग्जैक्ट अमाउंट मिलेगा 13 यूनिट सेल करने के बाद। ठीक है, लेकिन हमारा जो उस टाइम में प्रोडक्शन में जो 12 यूनिट का टाइम में हमारा मार्जिनल रेवेन्यू 468 मिला था। ठीक है, 12 यूनिट का टाइम में 13 यूनिट में तो सेम ही आएगा ना, लेकिन जो 468 में जब प्रोडक्शन किया तब उसका सेलिंग प्राइस 468 था। Actual if you want to find the actual selling price of 13th unit, then you have to find out R13 revenue functions. From the revenue functions, by using revenue functions, you have to find out R13
एंड 8-12 एंड दोनों का डिफरेंस जो मिलेगा वही होगा लास्ट आइटम का, मीन्स 13 आइटम का क्या प्राइस व रेवेन्यू, क्या कैसे सेल करने के बाद कितना मिलेगा वही मिलेगा. ठीक है. आफ्टर सेलिंग द 13th यूनिट वी गेट ₹456. Please subscribe and comment us. Online and offline classes of academic and competitive examinations of various entrance and services are available. If you want to join with us, you can communicate with us through our mobile number or email address